Yes, good evening students, everybody. Thank you. We start with our work, our first day for my subjects. I would like to give you some introduction regarding what we have to study during my class. No need to copy this right now. I have to speak something on this. We have to cover two different subjects. I will be taking with you English and business communication. Both are combined together. And the total syllabus that we have from the module from chapter number 9 to chapter number 16, दोनों सब्जेक्ट मिलाकर इंग्लिश एंड बिजनेस कम्युनिकेशन 9 to 16. Out of these chapters, only one chapter, chapter number 10, is for English. Rest all the chapters are for business communication. Now in that one chapter of English, what we have to study? This English syllabus, some details. There are 4 tables in the module. One is synonyms, tables बना के दिए हुए module, ready-made tables, you have to learn them. Antonyms, homophones, homonyms, and give one word for. ये सब क्या होता है? I will tell you. These are just the titles of the topics. Then in grammar, we have to practice only 6 topics. Tenses, voice, degree, no sooner than, hardly when, and simple compound complex. In grammar, 6 topics we have to study. Then there is a category of phrases, idioms and proverbs. Now usually students find this category very difficult. Module में phrases दिए हुए हैं, exam में कैसे पूछेंगे वो लोग? Meanings of the phrases. Means phrase is given to you and you have to learn its meaning. Total, if you see in the module, phrases, idioms and proverbs are little more than 200. That means approximately 220, 225. इसीलिए difficult लगता है because there are so many to learn. Then in the same chapter, we also have foreign languages. 4 foreign languages: Greek, German, Latin, French. Now, why do we have to study foreign language? Because English language जो develop हुआ, it developed much later. It is not amongst the oldest languages. It developed much later, and this language was made out of 4 different languages: Greek, German, Latin, French. इन लैंग्वेजेस के वर्ड्स थोड़े बहुत ग्रामर को लेकर के इंग्लिश लैंग्वेज बनाया गया था. सो वी हैव टू स्टडी ऑल दीज 4. स्टडी इन द सेंस वी विल नॉट स्टडी एंटायर लैंग्वेज. देयर आर सिलेक्टेड वर्ड्स गिवन इन द मॉड्यूल, ओनली दोज वर्ड्स वी हैव टू स्टडी: ग्रीक, लैटिन, जर्मन एंड फ्रेंच. एंड लास्टली वी हैव markings of MCQs from the module. As I teach the chapter, there will be some markings which I will be doing. You will have to learn them. So this entire vast syllabus is only one chapter, chapter number 10. ये study करना है. Now all of you have completed your SYJC very recently. You have been doing English as a language since your childhood. I was just talking to Jinesh sir outside during the break time, and okay, that means you know what I was talking to him and what he was telling me. I was quite surprised to hear a few things. Usually ऐसा होता नहीं है, but today when I heard some things about you people, I was quite surprised. And English being my subject, I was all the more surprised. He said, your English is extraordinary, superb, out of the world. क्योंकि दुनिया में वो English बोल ही नहीं सकते. It is out of the world. So he said, he gave me some examples today, कुछ words, he told me some words कि students को उन words के meanings भी नहीं पता है. I was actually disappointed to know. अच्छा, by the way, ये English language हम क्यों पढ़ रहे हैं? Let me just give you some knowledge about it. You are at foundation level of CS. English language है आपको. Students who are doing CA, Chartered Accountancy, their first level is CPT. Everybody knows that. CPT level, जैसे आपका foundation है, उनका CPT है. Till now, CPT में English language नहीं है. But coming year onwards, they are revising the syllabus, changing the syllabus,
and they are incorporating English language also in CPT level. यानी वहां नहीं था, वहां ऐड हो रहा है, आपको ऑलरेडी है. why are we adding languages तो आपने पहले से पढ़ा है. उसके पीछे मेन रीजन क्या हो सकता है? After you complete your CS, when you go for interviews, when you go for job interviews will be conducted in English language. Okay? आपका डिग्री एक तरफ, बट आपके पास नॉलेज कितना है, आपका लैंग्वेज पर कमांड कितना है, वो भी टेस्ट किया जाता है. ऐसा नहीं है कि आपने बता दिया आई स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंकिंग सो एंड सो गिव मी जॉब, ऐसा नहीं होता है. वहां पर काफी सारे राउंड्स होते हैं इंटरव्यू के. देयर आर ग्रुप डिस्कशंस एंड प्रोजेक्ट मेकिंग एंड डिफरेंट राउंड्स. तो उसमें इंग्लिश विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर सिंपल रीजन. सिंपल एग्जांपल, एक कैंडिडेट है इंटरव्यू के लिए जिसके पास डिग्री है, सीएस पूरा कर लिया उसने, रैंक भी अच्छा है, बट इंग्लिश में बहुत डाउन है. एंड देयर इज समबडी एल्स जिसने सीएस किया है बट रैंक थोड़ा पीछे है, बट इंग्लिश कमांड इज वेरी हाई. तो चांसेस आर दिस पर्सन विल गेट द जॉब. इट्स लाइक दैट. अदर थिंग इज इफ यू गो अब्रॉड, ओके, हायर स्टडीज करना है या फॉरेन कंट्री में आपको काम करना है, वहां जाके सेटल हो रहे, तो अगेन इंग्लिश विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इट्स दैट. तो ये लैंग्वेज बहुत जरूरी है. एंड सिंस वी हैव ओनली वन चैप्टर, इट इज नॉट पॉसिबल दैट आई क्रिएट सम मिरेकल ओवर हियर कि एक जो आप लास्ट 10-12 साल में इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं, तब अगर इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है तो एक चैप्टर से इंप्रूवमेंट लाना पॉसिबल नहीं है. बट माई एफर्ट्स विल बी वॉट एवर आई कैन ट्राई, आई विल डू माई बेस्ट इन दैट, सो दैट एटलीस्ट जो लो लेवल अगर है तो उससे हम ऊपर आ जाए. इट्स दैट. नाउ यूजुअली स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हाउ टू इंप्रूव इंग्लिश, क्या करना चाहिए इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए. नाउ अपने आप को जज करो. आई विल टेल यू सम थिंग्स, यू जज योरसेल्फ बिकॉज आई डोंट नो यू पर्सनली. आप पर्सनल लाइफ में आपके साथ क्या एक्टिविटीज है आई डोंट नो, बट आई एम टेलिंग यू सम थिंग्स. अपने आप को जज करो कि आपकी पोजीशन क्या है. इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए वन थिंग इज रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर्स. यू कंपेयर, आप आपके बारे में बेहतर जानते हैं. ओके, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ना. अब काफी लोग होंगे जिनके घर इंग्लिश न्यूज़पेपर आता होगा. amongst you people, घर पर डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर आता, डिफरेंट न्यूज़पेपर्स. बट क्या आप वो न्यूज़पेपर रीड करते हैं? अच्छा, न्यूज़पेपर रीड करने का मतलब ऐसा नहीं होता है कि घर पर पेपर आ गया तो मुझे इंग्लिश आता है. हाँ, हमारे घर टाइम्स ऑफ इंडिया आता है, आई नो इंग्लिश, ऐसा नहीं होता है. ओके, उसमें आप कितना रीड करते हैं दैट इज इंपॉर्टेंट. आप बोलोगे हाँ मैं रोज न्यूज, ऐसे भी स्टूडेंट्स है, हमारे घर पे इंग्लिश पेपर आता है, मैं रोज इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ. अच्छा, क्या पढ़ता हूँ? वो ज़ोडिएक साइन आती है ना कि आज लाइफ में क्या होने वाला है, आज मेरे साथ क्या होने वाला है, तो आई रीड इंग्लिश, आई नो इंग्लिश. ये गलत है. यू कैन नॉट हैव कमांड ऑन इंग्लिश बाय रीडिंग ज़ोडिएक साइन. ओके, सबसे पहले जो लोग ऐसा बनाकर देते हैं लाइफ में क्या होने वाला है, उनको खुद की लाइफ में क्या होने वाला है वो नहीं पता होता है. एंड दे आर गोइंग टू एडवाइज अदर्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन. तो वो उससे इंग्लिश इंप्रूवमेंट नहीं आएगा. अच्छा, आपको पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, नॉट पॉसिबल. मैं भी नहीं पढ़ता हूं. इट इज नॉट पॉसिबल कि हम एक एक सेंटेंस, एक एक लाइन पढ़ेंगे. वन मेथड इज हेडलाइंस. आपको जो न्यूज इंटरेस्टिंग लगती है हेडलाइन पढ़ के वो आप पढ़ लो. यू लाइक ओनली स्पोर्ट्स सेक्शन, सिर्फ वो पढ़ो. एनीथिंग अबाउट दैट, एटलीस्ट सम पेजेस ऑफ द न्यूज़पेपर. ओके, नाउ आई रीड वन सेक्शन, मैं पढ़ता हूं, बट पढ़ने के वक्त अगर मुझे कुछ वर्ड्स डिफिकल्ट लगते हैं, सो आई हैव टू टेक सम एफर्ट्स. मुझे समझो 15 वर्ड्स मुझे समझ में नहीं आए, 15, पूरे 15 नहीं, एटलीस्ट 5. मैं 5 वर्ड्स को मार्क करूं, उनका मीनिंग देखूं और वो मीनिंग लर्न करूं. ऐसे इंप्रूवमेंट आता है. ओके, यू रीड एंटायर, मैं सब सेक्शन पढ़ता हूं पेपर में, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है, तो एफर्ट्स लिया ही नहीं आपने. तो सिर्फ रीडिंग नहीं है, यू हैव टू टेक एफर्ट्स टू इंप्रूव. ये एक तरीका हुआ इंग्लिश न्यूज़पेपर्स. सेकेंड means when I was a student in school, what I did was to improve my language. मैंने एक नोटबुक रखी थी घर पर, एक्सरसाइज बुक, जिसमें जो भी स्टोरी बुक में पढ़ता हूं या न्यूज़पेपर या एनी XYZ थिंग, जो मुझे वर्ड्स डिफिकल्ट लगते हैं मैं उसमें लिखा करता था विद देयर मीनिंग्स, एंड आई वुड रिमेंबर दैट. एफर्ट्स लेना जरूरी है. ठीक है, ये एक तरीका हुआ. सेकेंड, क्रिकेट सीजन इज गोइंग ऑन. इनफैक्ट अभी थ्रू आउट द ईयर क्रिकेट चलते रहता है कहीं ना कहीं पर, तो यू मस्ट बी क्रेजीली वॉचिंग क्रिकेट मैचेस. बट माई रिक्वेस्ट इज कि आप जब इंग्लिश, आई मीन जब आप मैचेस देखते हो टीवी पर, इंग्लिश कमेंट्री में सुना करो. इंग्लिश कमेंट्री, हिंदी नहीं. वाई? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, यू मे नॉट अंडरस्टैंड इन द बिगिनिंग.
ओके वो कमेंट्री, वो लोग देयर एक्सेंट इज डिफरेंट, स्पीड उनकी बोलने की ज्यादा होती है, दे स्पीक वेरी फास्ट, यू मे नॉट अंडरस्टैंड, बट कोशिश करोगे एटलीस्ट सम थिंग्स, तो तुम्हारे दिमाग में वो लैंग्वेज घूमता रहेगा. इट्स दैट. सो व्हेन यू वॉच टेलीविजन, एंड आई एम श्योर कुछ लोगों की अभी भी हैबिट होगी कार्टून चैनल्स देखने की, वो भी इंग्लिश में आप देखो इफ यू आर वॉचिंग कार्टून चैनल्स नाउ. सो वॉचिंग एंड लिसनिंग, दैट इज गोइंग टू हेल्प. थर्ड थिंग, इंग्लिश मूवीज. नाउअडेज, मैंने पेपर में पढ़ा था कुछ लास्ट वीक या कहीं पर, कि नाउअडेज इन लास्ट 2 months या लास्ट 3 months English movies are much in demand compared to Hindi movies. Okay, some movies that have released which have become much more bigger hits than Hindi movies in India. अब हमारी हैबिट क्या होती है कि हम वो मूवी को हिंदी में डब किया हुआ है वो देखते हैं. अच्छा देखते तो है, ऑन टॉप ऑफ इट वी प्राउडली से आई लव वॉचिंग इंग्लिश मूवीज, मैं हर इंग्लिश मूवी देखता हूं. ओके, बट क्या डब करके, तो दैट इज नो सेंस एट ऑल. समझ में नहीं आएगा स्टार्ट, अगेन सेम प्रॉब्लम, यू मे नॉट अंडरस्टैंड, बट गिव इट सम टाइम, ट्राई टू गिव इट सम टाइम, टेक सम एफर्ट्स. तो ये 3 तरीके मैंने आपको बताया. टेलीविजन इंग्लिश, देयर आर सो मेनी चैनल्स, इंग्लिश चैनल्स ऑन टेलीविजन, सो मेनी प्रोग्राम्स कमिंग. सेकेंड थिंग इज न्यूज़पेपर जो मैंने आपको बताया. थर्ड थिंग इज मींस आप इंग्लिश के एनवायरमेंट में रहोगे, भले आपने लिखा नहीं सुना, स्लोली स्लोली इट विल डेवलप इंप्रूवमेंट इन यू. ये 3 चीजें हुई. एंड द मोस्ट बेसिक थिंग, आई एम श्योर आउट ऑफ द क्राउड विच इज ओवर हियर, some students must be knowing good English, some students definitely good English. अपने फ्रेंड्स के साथ इंग्लिश में बात करना. इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, अगर एक को इंग्लिश आती है और वो इंग्लिश में बात करता है तो बाकी के 5 उसको चुप करा देते हैं कि इट्स दैट कि नहीं ये, बिकॉज हम फिर उसे इतना टॉन्ट करते हैं कि आप पता है अमेरिका से इंग्लिश में बहुत बोलता है, ऐसा वैसा, हम लोग के साथ रहना हिंदी में बात करिए, गुजराती मराठी वॉट एवर इट इज. ओके, तो एक बेचारा जो कोशिश करना चाहता है उसे भी हम चुप करा देते हैं. दैट शुड नॉट हैपन. एंड इन सी, आप बोलोगे, कोशिश करोगे, हेजिटेशन होगा, यू मे मेक मिस्टेक्स, बट मिस्टेक से ही हम सीखते हैं. तो आप आज मिस्टेक करोगे, जब तक सीएस कंप्लीट होगा आपका तब तक तो इंप्रूवमेंट आ जाएगा. आप बोलोगे नहीं मेरा पूरा सीएस पहले उसका ठिकाना नहीं है, होने वाला है कि नहीं होने वाला है, फिर मैं देखूंगा, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प. ओके, इंग्लिश को आपको सिर्फ सीएस के लिए नहीं पढ़ना है, आपके लिए पढ़ना है, आपके लाइफ के लिए पढ़ना है. इट्स दैट वेरेवर यू आर, दिस लैंग्वेज विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ओके, तो when we have a class, we are meeting tomorrow also, time and again whenever possible I will share some extra knowledge with you. My target is not only completing these topics, my target is whatever improvement I can bring in you as far as this language is concerned, I will work on it. At the same time आपको कुछ डिस्कस करना है, मीन्स यू हैव सम डाउट्स रिगार्डिंग द लैंग्वेज, यू वांट टू नो सम थिंग्स फ्रॉम मी, यू कैन डेफिनेटली आस्क. मीन्स इट शुड बी मोर ऑफ इंटरैक्शन. ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ये टॉपिक हो गया ग्रामर चलो आई नो, बट नहीं, आपको लैंग्वेज भी इंप्रूव करना है. इट्स दैट. ओके, सो दिस एंटायर थिंग इज ओनली 1 चैप्टर, चैप्टर नंबर 10. जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इट विल टेक टाइम, काफी बड़ा सिलेबस है, देन वी विल स्टार्ट विद बिजनेस कम्युनिकेशन. That means first few classes we are only going to do English, then business communication. Okay, when you come for my class, आपको क्लासेस से नोट्स भी दिए गए, शायद MCQ नोट्स दिए गए हैं, मॉड्यूल होगा शायद आपके पास, किसी के पास होगा किसी के पास नहीं होगा. प्रेजेंटली नेक्स्ट 2-3 और मे बी 4 क्लासेस ऑफ माइन, ये दोनों बुक्स की जरूरत नहीं है, मॉड्यूल की भी जरूरत नहीं है और नोट्स की भी जरूरत नहीं है. यू ओनली हैव टू कैरी 1 नोटबुक विथ यू, एक्सरसाइज बुक, बिकॉज शुरुआत में हम बेसिक ग्रामर करने वाले हैं, फिर हम मॉड्यूल यूज करेंगे. तो राइट नाउ मींस टुमारो आल्सो वी आर मीटिंग, आप मॉड्यूल मत लेकर आओ, आई विल टेल यू इन एडवांस व्हेन टू ब्रिंग इट. ओनली 1 एक्सरसाइज बुक इज रिक्वायर्ड, बट कीप एवरीथिंग इन द सेम एक्सरसाइज बुक. अलग अलग बुक मेंटेन मत करो. लास्ट बेंच, आर यू हियरिंग व्हाट आई सेड? बिजी विद समथिंग? ओके. अदर थिंग, जो भी आज सिखाया जाएगा, whatever I will be teaching you tomorrow when we meet, उसमें जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हो. Please see to it, you don't hesitate. If you cannot ask in front of entire class, we usually come here, we sit over here. आप ऑफिस में
क्लास के पहले ब्रेक है या क्लास के बाद while going you can just make us wait for 5 minutes and clear whatever you have. अगर आप पूरे क्लास के सामने नहीं पूछ सकते हो तो, but see to it Jinesh sir becomes very happy with your English in future and it is a big challenge that we have to overcome now. Okay, और वो लैंग्वेज आएगा तो आपको बाकी के सब्जेक्ट्स में जो इंग्लिश के सेंटेंसेस है, जो लॉ वगैरह है, मैथ्स है, वो समझ में आएगा आपको. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस ऑल अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो. ठीक है. राइट नाउ एनीबडी हैज एनी डाउट्स, एनी क्वेरी यू हैव रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी. एनी क्वेश्चन एनीबडी? ओके, सो शैल वी स्टार्ट विद आवर वर्क. अच्छा, व्हाट आर वी गोइंग टू डू? ये सबसे पहले आपको कॉपी करना होगा. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सम बेसिक ग्रामर, बेसिक लेवल. ओके, तो ये पहले कॉपी कर लो, देन वी विल स्टार्ट. ओके, नाउ वी गो अहेड. Till last year SYJC you had lot of topics in grammar, but you can see, अच्छा ये सब में से जो ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक है वो एक ही है, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स. अदर टॉपिक्स आर एवरेज, नॉट सो डिफिकल्ट. एंड आउट ऑफ दीज 6 द स्मॉलेस्ट टॉपिक्स नो सूनर देन एंड हार्डली वेन. स्मॉलेस्ट टॉपिक्स यानी ग्रामर में इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, एंड इट विल हेल्प यू. बट वी हैव टू डू सम बेसिक ग्रामर टुडे. सबसे पहली चीज, ग्रामर विच आई एम स्टार्टिंग राइट नाउ, the spelling is Grammar. What happens is there is always a confusion between AR and ER. I have come across many students जो ER कहते हैं, that is wrong, AR. So when we start grammar, we have to write the correct spelling of grammar, Grammar. And one thing that is there in your syllabus, MCQs में, I really like that thing that they have included English के MCQs में, dictation words. Means कैसा question आता है? Identify the correct spelling. और 4 spelling दिए हुए, तो आपको मार्क करना है कौन सा right है. Tomorrow when we meet, I request you to remind me to give you one short dictation test in the class. कल just मुझे देखना है some common words, कोई extraordinary words नहीं, common words. I want to see where you stand in that. Just remind me tomorrow for English dictation. Okay. Now this is syllabus detail. Presently we are starting with basic grammar. I am going to write some things. You please copy, but see to it the spelling of grammar you write should be correct. Grammar. Okay. So you may start writing whatever I will write.
this much presently. Okay, now have a look at this. Basic grammar, attention everybody. These are just few things which you can see on the board. I have to add 2-3 more things in this. पहले इतना समझ लेते हैं. First thing is prefixes. Prefixes are alphabets used before the main word. Means if you have to add prefix, means you have to add alphabets before the word. Example, cover, uncover. That means prefix is un, un. National, international. So prefix is inter. Any alphabets that you add before the word are called as prefixes. Suffixes, alphabets used after the main word. वो पहले ऐड करते, ये बाद में ऐड करेंगे. Refresh, refreshment. So suffix is ment, ment. Happy, happiness. So suffix is ness. Okay, so prefixes are alphabets added before the word. Suffixes are alphabets used after the word. Now I have one doubt to ask. Please help me with that. Cover, I wrote the answer as uncover. And national, international. Will it be correct if instead of writing uncover, I write discover, and instead of writing international, I write anti-national? Right होगा? But meaning change हो रहा है. Cover, discover, totally different meaning. National, international की जगह anti-national, opposite हो जाता है. It is allowed. Meaning से आपको कोई लेना देना नहीं है. You have to add alphabets before the word. अच्छा, international, I told anti-national. I can also write multinational. All are correct. So target is you should add alphabets before the word. Prefixes, suffixes after the word. Synonyms. Words having similar meanings. इसके पहले आपने syllabus details लिखे, उसपे मैंने दिया था 4 टेबल से लर्न करने हैं. One table is synonyms. Synonyms क्या होते हैं? Words having similar meanings. Purchase, buy, same meaning है. Quick, soon. मॉड्यूल में पूरा टेबल बना के दिया हुआ है, वर्ड्स दिए हुए हैं,
वो हमें लर्न करने होंगे, सिनोनिम्स. एंड एंटोनिम्स आर वर्ड्स हैविंग ऑपोजिट मीनिंग्स. ये भी टेबल मॉड्यूल में है. एंटोनिम्स ऑपोजिट वर्ड्स. परचेज का ऑपोजिट सेल, क्विक का ऑपोजिट स्लो. सो आई जस्ट रिपीट दिस. Prefixes, alphabets before the word. Suffixes, alphabets after the word. Synonyms, words having similar meanings. Antonyms, words having opposite meanings. ठीक है. फिर homophones, homonyms. ये दो चीजें क्या है? First, words having different spellings but similar pronunciation. मीन्स इसमें दो वैरायटी है. पहली वैरायटी ये है, सोचो, words having different spelling, अलग अलग स्पेलिंग के वर्ड्स है, but similar pronunciation. मीन्स उनको बोलने का तरीका एक जैसा है. एग्जाम्पल, KNOW, नो, NO, नो. स्पेलिंग्स डिफरेंट है, मीनिंग्स भी डिफरेंट है, बट द वे टू प्रोनाउंस देम इज सिमिलर. पहले वाले को भी नो कहते हैं, दूसरे वाले को भी नो कहते हैं. SEEC, SEAC, अगेन स्पेलिंग्स आर डिफरेंट, बट द वे टू प्रोनाउंस देम इज सिमिलर. They are called as homophones. Now I would like to listen more examples from you people. Whoever wants to try, you may raise hand for that. जिसको try करना है. Yes. Spelling. No. Yes. No. No, no, no. That is different. 1 minute. 1 minute. Yes. This is correct. WRITE, right? RIGHT, right? You said something? अच्छा. Okay. NIGHT, night. KNIGHT, night. DEER, deer, वो animal. And DEAR, pronunciation same है. Deer, deer, correct. Yes. Okay. Only alphabet I. Capital I लिखते ना? Pronoun I. And EYEI, correct? SON, sun. SUN, sun. And one last example. Spelling. YOU. वो SMS WhatsApp लैंग्वेज हो गया. ओनली अल्फाबेट U नहीं चलेगा. मैंने I क्यों सिलेक्ट किया? बिकॉज इट इज अ प्रोनाउन. ओके, वैसा नहीं देखना है. यस, ओके. आई गॉट वन लास्ट एग्जाम्पल हियर. वन इज EAR, ईयर, एंड वन इज YEAR, ईयर. ओके, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है, बहुत सारे. अच्छा, ये आपको एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा वो भी आपको समझना है. इन एग्जाम दे विल, जैसे ये नो एंड नो दोनों के मीनिंग अलग अलग है, तो एग्जाम में वो लोग इसके आपको मीनिंग पूछेंगे. ओके, मॉड्यूल में इसका लिस्ट है. आई सेड देयर आर 4 टेबल्स टू स्टडी. एक है सिनोनिम्स, एक है एंटोनिम्स, और इसका भी एक टेबल है. तो जो टेबल में है ना, सिर्फ इतने ही वर्ड्स हमें लर्न करने हैं उनके मीनिंग्स के साथ. तो इट्स वेरी इजी.